which is defined as the solution of ordinary linear differential equations of second order with variable coefficients in the form of an infinite convergent power series is called solution in series or integration in series. In general, our question is series solution की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो in general, the solution of differential equation with variable coefficients such as Legendre equations जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, Bessel's equations, hypergeometric equations, etc. इनके सोल्यूशन को हम एलिमेंट्री फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और इस तरह के केस में ही हम लोग सोल्यूशन इन सीरीज मेथड को अडॉप्ट करते हैं. Power series is basic definitions of series solutions, which is defined as an infinite series of the form summation n from 0 to infinity cn x minus a to the power n, which is equal to c naught plus c1 x minus a plus c2 x minus a whole square plus dot dot. This is called power series in ascending power of x minus a, which is centered at a. तो इसका एग्जाम्पल अगर हम sin x लेते हैं तो sin x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट. तो यहाँ पे सेंटर क्या है? सेंटर 0 है, विच इज सेंटर्ड एट 0. दिस पावर सीरीज is in ascending power of x minus 0 centered at 0. Next term is analytic function, which is defined as a function fx is said to be analytic at a point x is equal to a if function fx has Taylor series expansion about a means a is any point, which is given by summation n from 0 to infinity f to the power n a upon factorial n into x minus a to the power n. This exists and converges to function fx for all x in some interval including point a. तो यहाँ पे जो टर्म है converges, what it means, convergent का यहाँ पे क्या सेंस है, क्या मीनिंग है? इट मीन्स जो भी आपका ये एक्सपेंशन दिया हुआ है समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल n, हमारा ये एक्सपेंशन दिया हुआ है, ये एग्जिस्ट करेगा. इसका मतलब कि कोई कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगा. सो कन्वर्जेंट मीनिंग्स कि दिस एक्सपेंशन इज इक्वल टू, सपोज ये कांस्टेंट p हो सकता है, इस तरह की कोई भी वैल्यू हो सकती है. एग्जाम्पल e टू द पावर x 1 plus x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन. सो इस एग्जाम्पल को, so here we have taken example e to the power x, expansion of e to the power x. तो सपोज करेंगे कि fx is equal to e to the power x. अगर आप इसको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो इट इज ऑल्सो e to the power x. 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो वी हैव सेम वैल्यू. तो fn x यानी इसका nth डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करें तो ये e to the power x के इक्वल है. अब अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो सभी डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू 1 हो रही है. तो fn 0 is also 1. Now we know expansion of e to the power x is equal to 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 plus dot dot. तो यहाँ पे 1 है, इसको हम टेलर्स एक्सपेंशन में लिख सकते हैं f0 plus f dash 0 into x minus 0 plus f double dash 0 upon factorial 2 x minus 0 का होल स्क्वायर. क्योंकि हम e टू द पावर x को टेलर्स एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन e टू द पावर x इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी f टू द पावर n 0, हियर n स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, अपॉन n फैक्टोरियल इनटू x माइनस 0 टू द पावर n. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि e टू द पावर x को हम टेलर्स एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, इसलिए e टू द पावर x इज एनालिटिक फंक्शन. सो हेंस वी कैन से e टू द पावर x इज एन एनालिटिक फंक्शन. Next definition is ordinary and singular point, which is defined as a point x is equal to a is said to be an ordinary point of the differential equation, which is of the form d square y upon dx square plus px dy upon dx plus qxy is equal to 0, where px and qx both are analytic function.
एनालिटिक फंक्शन अभी अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया है। तो अल्टरनेटिवली हियर x इज इक्वल टू a इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट इफ लिमिट x टेंड्स टू a px इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a को हम ऑर्डिनरी पॉइंट तभी कहेंगे जब अगर हम px का लिमिट लें इस पॉइंट पे तो वो एक फाइनाइट क्वांटिटी हो। सेम कंडीशन फॉर q, अगर हम इसी पॉइंट पे q की लिमिट लें तो वो भी एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। फॉलोइंग आर सम रिमार्क्स। अबव डेफिनेशन, इट इज ऑब्वियस दैट जो भी रैशनल फंक्शन होंगे वो हमेशा एनालिटिक होंगे, बट एक्सेप्ट एट दोज वैल्यू ऑफ x एट विच इट्स डिनोमिनेटर इज 0। वो सारे रैशनल फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर पे अगर उस पॉइंट की वैल्यू 0 हो रही है तो उस पॉइंट को छोड़कर सारे पॉइंट पे जो रैशनल फंक्शन होंगे वो एनालिटिक होंगे। सेकेंड रिमार्क इज, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, hyperbolic sin x, hyperbolic cos x, these all are analytic everywhere. Other definition is singular point. If the point x is equal to a is not an ordinary point of the differential equation given as d2y upon dx square plus px dy upon dx plus qx into y is equal to 0, then it is called singular point of the given differential equation. There are mainly two types of singular point. First is regular singular point, and second is irregular singular point. So regular singular point can be defined as a singular point x is equal to a is called a regular singular point if both x minus a px and x minus a whole square qx are analytic at x is equal to a. अगर ये दोनों एनालिटिक फंक्शन होंगे x is equal to a पॉइंट पे, then that singular point x is equal to a is called regular singular point, and in other way we can define it as x is equal to a is regular singular point if limit x tends to a into x minus a px is equal to a finite quantity. अगर हम इस पॉइंट पर लिमिट लें x माइनस ए पी एक्स का तो ये फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, और अगर इसी पॉइंट पे हम लिमिट लें x माइनस ए स्क्वायर क्यू एक्स तो वो भी एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसे हम बोलेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सेकंड डेफिनेशन है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अ सिंगुलर पॉइंट विच इज नॉट रेगुलर इज कॉल्ड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। Here we have taken an example. Determine the nature of x is equal to 0 for the differential equation 2x square d2y upon dx square plus 7x into x plus 1 dy upon dx minus 3y is equal to 0. So what is the meaning of nature? Nature means we have to here discuss कि x is equal to 0 पे ये ordinary point है या regular point है या किस टाइप का है। तो solution we have differential equation 2x square d square y upon dx square plus 7x into x plus 1 dy upon dx minus 3y is equal to 0. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे हमें ये चेक करना है कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, वो ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 7x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर dy upon dx minus 3y upon 2x square is equal to 0. अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कंपैरिजन करते हैं तो वी हैव px इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x एंड qx इज इक्वल टू दिस वन माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर। अब हमें सिंगल ऑर्डिनरी पॉइंट चेक करने का फॉर्मूला है कि अगर हम इसका लिमिट लें और ये फाइनाइट क्वांटिटी हो जाए तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। तो हम चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, px इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, px है हमारा 7 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x। तो जब आप लिमिट लोगे x टेंड्स टू 0 तो ये इन्फिनिटी आता है विच इज नॉट अ फाइनाइट क्वांटिटी। सिमिलरली अगर हम qx के लिए x टेंड्स टू 0 चेक करें तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर इज ऑल्सो infinite. Since both limits are infinite, that is not a finite quantity, therefore x is equal to 0 is not an ordinary point.
ऑर्डिनरी पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है वो फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, हेंस इट इज सिंगुलर पॉइंट। सो हियर वी गॉट कि x इज इक्वल टू 0 इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट बट सिंगुलर पॉइंट। अब हमें पता है कि सिंगुलर पॉइंट के भी दो टाइप हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि अगर ये सिंगुलर पॉइंट है तो कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, रेगुलर और इरेगुलर। तो हमारे पास ये चेक करने के लिए लिमिटिंग फॉर्मूला है कि अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू x माइनस 0 px चेक करें और ये फाइनाइट क्वांटिटी हो, फिर सेम qx के लिए अगर चेक करें और वो भी फाइनाइट क्वांटिटी हो, तो ये हमारा x इज इक्वल टू 0 पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। तो लेट अस चेक, लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू इंटू x माइनस 0 px है हमारा 7 इंटू x प्लस 1 अपॉन 2x। तो अगर हम ये कैंसिल करते हैं कि सब सिंप्लीफाई करके